this month, we have been doing a series of messages titled The Cross and Crown. इस पूरे पिछले हफ्तों में हम लोग एक शीर्षक के ऊपर अध्ययन कर रहे थे कि क्रूस और मुकुट. And in this series, we were studying in depth the purpose of Jesus coming to this world and the subsequent suffering he had to go through to fulfill the Father's will. और हम ये अध्ययन कर रहे थे पिछले दिनों में कि क्या मकसद था यीशु मसीह का उस क्रूस की मृत्यु के लिए और कैसे उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया. So first Sunday, we had a very powerful message from Pastor Jobin about the message of the cross. तो पहले हफ्ते में हमारा एक बहुत ही सामर्थी वचन जो पास्टर जॉबिन हमारे बीच में बांटे थे. And last Sunday, we were so blessed to hear from Brother Don Lazarus a message on the cost of the cross. और पिछले हफ्ते हमने भाई डॉन के द्वारा वचन सुना, बहुत आशीषित था कि क्या है उस क्रूस की क्या मांग है. Today being the Easter Sunday celebrated globally as one of the significant days of the church calendar, I have the privilege to specifically speak on Jesus, the crowned King. और हमारे पास आज एक ऐसा दिन है जो पूरे भूमंडल में सारी सृष्टि में बनाया जाता है, जो दिन हम लोगों के लिए, और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में ला सकती हूँ. On the topic Jesus the crowned King. और मेरा शीर्षक आज सुबह वचन का ये है कि यीशु जो मुकुट पहना हुआ है. And our main text is taken from Hebrews chapter 2 verses 9 to 11. और मेरा जो मुख्य जो मैंने पद लिया है वो इब्रानियों 2 अध्याय से है. The crowning ceremony of a king or queen is called coronation. जो राजा और रानियों को जो मुकुट पहनाया जाता है उनको उस जो रीति होती है उसको कोरोनेशन कहते हैं. And we know that Jesus once wore a crown of thorns, the crown of suffering, and he rose again from the dead, just as he promised. और हम जानते हैं यीशु के बारे में कि यीशु ने उस पीड़ा का मुकुट पहना और वो हमारे लिए उस क्रूस पर मरा. And the resurrection of Jesus is the most significant event in the history of humanity. और ये पुनरुत्थान की घटना मानव जाति के इतिहास में सबसे एक मुख्य घटना है. If Jesus only had claims that he will rise up, he would have been lying there in that place, like any other religious leader. अगर यीशु सिर्फ ऐसी ही ये बोल देता कि मैं जी उठाऊं करके, तो नहीं ऐसा होता. यीशु अभी भी कब्र में ही होता. But what makes Jesus different is that he rose again from the dead and he is living today. लेकिन यीशु को क्या चीज अलग बनाती है वो ये है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे 3 दिन के बाद. In Matthew chapter 28 verse 6 we read like this: He rose again from the dead just as he said. और मत्ती के 28 के हम 16 में देखते हैं, वचन कहता है जैसे उसने कहा था वैसे ही वो जी उठा है. Friends, we are serving a living God who is true and trustworthy. मित्रों, हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो विश्वास योग्य है और जीवित है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. So let's look at the coronation of Jesus. आइए देखते हैं यीशु का मुकुट पहनाने. When Jesus came into this world 2000 years ago, जब यीशु 2000 साल पहले इस संसार में आए, Jewish people thought that he will establish a kingdom and he is going to rule as their king. और यहूदी लोगों ने ऐसा सोचा कि यीशु आएगा और वो अपने राजपाट को इस संसार में स्थापित करेगा. So when those people wanted to make Jesus their king, he spoke to them in a parable to explain to them when would his kingdom would come to rule in this world. और जब लोग ऐसी बात करते थे तो यीशु दृष्टांत के द्वारा लोगों को बताता था कि वो कब इस संसार में उसका राज्य आएगा और कैसे वो उसका शासन करेगा. In the Gospel of Luke chapter 19, we read about the parable of Minas. लूका 19 में भी हम एक उदाहरण पढ़ते हैं. And in verse 12 it says, वहाँ 12वें पद में ऐसा लिखा है, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. और वहाँ पे ऐसा लिखा है 12वें पद में कि तथा उसने ऐसा कहा कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपाट पाकर लौट आए. This is speaking of Jesus Christ ascending to the Father to heaven to come back one day to judge the world and to become the king of this universe. और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह कैसे संसार से अपने पिता के पास जाते हैं और वापस आएंगे ताकि इस संसार में अपना राज्य को स्थापित करें. After 60 years of his death, resurrection and ascension,
Christ revealed himself to Apostle John at the island of Patmos, and that is where we got the book of Revelation. और 60 वर्ष के बाद यूहन्ना को पतमुस टापू पे दर्शन मिलता है, जहाँ पर हम पाते हैं कि वो हम प्रकाशित वाक्य उसने लिखा. In Revelation chapter 1, verses 12 to 18, we are not going to read this portion because of lack of time. You can read at home, just note down. हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ते हैं, हम उसको पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन आप उसको लिख सकते हैं. Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 12 verses 12 to 18. 12वें पद से लेकर 18वें पद तक. Okay, so here we can see John's description of Jesus Christ in his glorified state. और हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना कैसे यीशु को एक महिमा में उस स्तर में बताता है. But when you read that portion, we see that Jesus is not wearing a crown, which tells us that when Jesus ascended into heaven, when he went to the Father, he was not crowned immediately. और यूहन्ना यहाँ ये बताना चाह रहा है, जब यीशु इस संसार से अपने पिता के पास गए तो उन्होंने उस समय मुकुट नहीं पहना हुआ था. According to Hebrews chapter 3 verse 1, Christ's current office is that of a high priest. और हम इब्रानियों 3 के आधार पर अगर देखें तो वहां पर यीशु का जो कार्य है वो एक महायाजक का है. So where in the Bible do we see the coronation of Jesus Christ described? तो कहां पर बाइबल में हम पाते हैं यीशु की वो उस प्रक्रिया को जब उसको वो राजा बनाया गया? You know, this was revealed even before Jesus Christ came into this world 2000 years ago. इससे पहले ये बहुत ही पहले बता दिया गया था, इससे पहले जब यीशु इस संसार में आए. Let's read Daniel, prophecy of Daniel, chapter 7, verses 13 to 14 in Hindi. आइए मिलकर हम पढ़ते हैं डैनियल की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय का 13 और 14 पद. मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो. उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा. Amen. Here prophet Daniel is writing this prophecy about Jesus Christ. He has written, Son of Man, Jesus coming to the Ancient of Days, who is the Father. और यहाँ पर हम पाते हैं कि डैनियल यीशु के बारे में लिख रहा है जो प्राचीनों का याज मतलब पिता है. And there he has given dominion and glory and a kingdom. और यहाँ पर उसको प्रभुता मिली है, राज्य मिला है और महिमा मिली है. And it says his dominion is an everlasting dominion. और यहाँ पर लिखा है कि वो उसका जो राज्य है वो अविनाशी है. So this passage talks about Jesus' crowning even before he was born in this world. और यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु को कैसे वो मुकुट मिलता है इससे पहले कि वो संसार में पैदा हो. So let's check on some other Bible verses to see when would this happen. आइए बाइबल के कुछ और पदों को देखते हैं और पाते हैं ये कब हुआ था. In Daniel chapter 7, same chapter, verses 9 and 10. Let's read this portion हम also. डैनियल की पुस्तक में ही उसके 7वें अध्याय के 9 और 10 पद को भी पढ़ लेते हैं. यहाँ पे ऐसा लिखा है, मैंने देखते देखे अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ. उसका वस्त्र हिम सा उज्ज्वल और सिर के बाल निर्मल ऊन सरी के थे. उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहले धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे. उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी. फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे. फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गईं. Here Daniel saw Jesus on his throne. यहाँ पे डैनियल जो है वो यीशु को सिंहासन पे देख रहा है. And it is written that thousands, 10,000s upon 10,000s were standing before Jesus. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हजारों हजार में और लाखों लाखों लोग जो हैं यीशु के सामने खड़े थे. And the court was seated and the books were opened. और जो है न्याय बैठा गया और किताबें खोली गईं. When do you think that this is going to happen? आपको क्या लगता है ये चीज कब होगी? After the resurrection of the dead and before the judgment, right? ये तब होगा जब लोगों का पुनरुत्थान होगा और साथ ही साथ न्याय से पहले. Let's look at another Bible portion. Revelation chapter 11
verses 15 to 18 it is written, but we will only read the verse 15. हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वें अध्याय के 15वें पद को पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। जब सातवें दूत ने तुर्री फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राजा हमारे प्रभु का और उसकी महिमा का हो गया और वो युगानुयुग राज्य करेगा। Yeah, here it is written, Christ's coronation will take place at the sound of the seventh trumpet. और यहाँ ऐसा लिखा है कि यीशु का जो राज्य अभिषेक है वो सातवें तुर्री फूकने जाने पे होगा। And when we come to Revelation chapter 14 verse 14, और जब हम प्रकाशित वाक्य के 14 अध्याय के 14वें पद में आते हैं, we see Jesus wearing his gold crown. हम देखते हैं कि यीशु ने यहाँ सोने का मुकुट पहना हुआ है। Shall we read that portion also? और क्या हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 14? यहाँ ऐसा लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरी का कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ पे चोखा हंसुआ है। This Jesus, the crowned king, is our model. ये यीशु जिसने मुकुट पहना हुआ है, ये हमारा एक नमूना है। You know, a crown is a symbol of power, authority and kingship. एक मुकुट जो है वो एक सामर्थ का, अधिकार का और राजपाट को बताने वाला एक चिन्ह है। The crown of glory or royal diadem is not meant for ordinary heads just because it is glorious and royal. एक जो महिमा में जो मुकुट है वो सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो महिमा को प्रकट करता है। Did Jesus simply receive the crown of glory and honor? क्या यीशु ने ऐसे ही साधारण रूप में वो महिमा का मुकुट पाया अपने लिए? Let's go to our main text, Hebrews chapter 2 verses 9 to 11. We will first read verse 9. सबसे पहले आइए मिलकर इब्रानियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद को पढ़ते हैं। इब्रानियों 2 उसका 9 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखता है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। So first what we see here is his perfect obedience to the Father, his humility and surrender. हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं यीशु का अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता और उसका समर्पण जो यीशु के लिए था, पिता के लिए था। Let's look at the first part of verse 9. सबसे पहले हम इसका पहले भाग को देखते हैं 9वें पद का। Here it's written, but we do see Jesus who was made lower than the angels for a little while. यहाँ ऐसा लिखा है, हम यीशु को स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया है। In Psalms, when you go to the book of Psalms in chapter 8 verse 5, we read like this. वहाँ जब हम भजन संहिता के 8 के 5 को खोलते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. क्योंकि तूने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। And this verse we all know is talking about us human beings. और हम जानते हैं कि ये पद किसके बारे में बताया गया है, ये हम लोगों के बारे में बताया गया जो मनुष्य हैं। We know that we are made in the image of God, but at the same time God has made us a little lower than the angels. हमको ये पता है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन हमें ये भी पता है कि उसने हमको स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है। So if Jesus was made a little lower than the angels, that means Jesus has come down to the status of us human beings. अगर यीशु को स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है, इसका मतलब ये है कि यीशु हमारे मानव जाति के उस स्तर पर आ गया। So while Jesus was fully God, he became fully man. He was 100% God and 100% man. तो जब यीशु इस पृथ्वी पर मानव बनकर आया तो वो पूरी रीति से एक परमेश्वर था और पूरी रीति से मनुष्य था। 100% परमेश्वर था, 100% मनुष्य था। So was it necessary for Jesus to become a human being to get his position in heaven? What do you think? तो क्या ये यीशु को मनुष्य बनना जरूरी था ताकि वो अपनी पदवी को स्वर्ग में पा सके? आपको क्या लगता है? No, not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं। Because he was already God, Jesus was part of the Trinity even before the creation of the universe. क्योंकि यीशु पहले से ही परमेश्वर थे और त्रिएकता में एक मनुष्य थे और वो पहले से ही सृष्टि से पहले ही वो थे। But
Jesus was willing to obey the Father to fulfill his purposes. लेकिन यीशु अपने पिता की आज्ञा को मानना चाहते थे ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके। Christ becoming a man, he was limiting himself and he was leaving those precious things. The most precious thing for him was the unhindered communion with his Father. और इसीलिए जब यीशु ने संसार में मानव रूप लिया तो वो पूर्ण रीति से अपने पिता के साथ वार्तालाप नहीं कर पा रहे थे। I remember Pastor James using the illustration of ants. मैं याद करती हूँ कि पास्टर जेम्स उदाहरण दे रहे थे चींटियों का। Only one ant understands the life of another ant, right? सिर्फ एक चींटी ही दूसरी चींटी के जीवन को समझ सकती है And only one dog understands its friend's life. और इसलिए एक कुत्ता दूसरे अपने दोस्त के जीवन को समझ सकता है। So becoming a human allowed Jesus Christ to experience everything a human being go through in life. इसलिए यीशु का मानव बनकर इस संसार में आना यीशु के को मदद किया कि वो हर मानव जाति जो परिस्थिति से गुजरती है उसको समझ सके। And that made him compassionate. He is in Hebrews chapter 2, verses 17 and 18, it says, he is merciful and faithful high priest and he is compassionate to us. और इसी कारण से यीशु बहुत ज़्यादा तरस से भरा हुआ था और जैसे यहाँ वचन में भी लिखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के प्रति दयालु था। And also, if Jesus has become victorious after living as a full human, that gives us also assurance that we can live a victorious life when you are living in Christ Jesus. और जब यीशु ही हमको ये आशा मिलती है कि जब यीशु मानव संसार में अपना जीवन एक विजयी जीवन बिताया तो हम भी इस संसार में हम एक विजयी जीवन बिता सकते हैं। Amen. Amen. And the second thing we see here is his willingness to suffer. और दूसरी चीज जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि यीशु की इच्छा पीड़ा उठाने के लिए, दर्द उठाने के लिए, Suffer for others' sins. दूसरों के पापों के लिए, कष्ट उठाने के लिए। And let us look at the second part of verse 9. हम जो है इस 9वें पद के दूसरे भाग को देखते हैं। It says, now crowned with glory and honor because he suffered death. मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखा। Look, notice that word because. यहाँ पर एक शब्द हम देखेंगे क्योंकि। The literal meaning of this verse is that his crowning is a result of his perfect obedience to the Father to suffer death. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का मुकुट पहनना परमेश्वर अपने पिता की सिद्ध इच्छा को पूरी करना दिखाता है। Let's compare this verse with a verse from Philippians chapter 2, verses 8 and 9. हम फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 देखते हैं। It says, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, notice the word there, therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. और यहाँ ऐसा लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। So notice these two words from these two verses. One says, because what? He suffered death. He was obedient to the Father. इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद से अगर हम देखें तो वहाँ पर उसने जो पीड़ा उठाई उसके कारण उसके पिता ने ऐसा किया। And the second verse we have seen, therefore God exalted him. क्योंकि उसने पीड़ा उठाई और कष्ट उठाया इस कारण से। We know that Jesus did not suffer death on the cross because he has done something wrong. हम जानते हैं कि यीशु ने क्रूस की मृत्यु इसलिए नहीं सही क्रूस पर क्योंकि उसने कुछ गलत किया था। And we know that Jesus was so kind and compassionate to all those who approached him. और हम ये भी जानते हैं कि यीशु बहुत दयालु था और लोगों पर तरस खाता था जो भी उसके पास आता था। He healed the sick, he raised the dead. उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। He fed the hungry. उसने भूखों को खाना खिलाया। He opened the eyes of the blind and the ears of the deaf. उसने अंधों को आंखें दी और बहरों को सुनने की शक्ति दी। And he taught about the kingdom. He taught about how to pray. उसने लोगों को सिखाया कि राज्य क्या है, प्रार्थना कैसे करते हैं। And he taught people all the good things and he did all the good things. यीशु ने सब लोगों को अच्छा सिखाया और उसने खुद भी अच्छा काम किया। We don't see that Jesus doing a gossip. हमने नहीं देखा, कहीं नहीं सुना पढ़ा है ऐसा कि यीशु ने चुगली करी।
And he was not envious to the Roman or Jewish rulers. वो यहूदी और रोमी जो राज्य जो लोग थे, जो सिर लोग थे, उन लोगों की से कोई जलन नहीं करी। Jesus didn't do any harm to anyone. यीशु ने किसी की भी कोई भी हानि नहीं की। You know, he didn't kill or steal or destroy anyone's property. यीशु ने किसी की भी संपत्ति को ना छुआ, मतलब ना चोरी करी, ना उसकी हानि पहुंचाई। Then why did they crucify him? तो फिर यीशु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? Friends, because it was the Father's will that his son will be suffered and sacrificed. मित्रों, ये परमेश्वर उसके पिता की इच्छा थी कि यीशु ऐसा कष्ट उठाए। Otherwise, do you think that anyone can touch Jesus? क्या नहीं तो आप सोचते हैं कि क्या यीशु को कोई छू सकता है? Nobody can touch him. कोई भी यीशु को छू नहीं सकता। And Jesus, who raised dead people, could have come out from that cross. और यीशु जो मुर्दों को जिंदा करता था, वो क्रूस से अपने आप से आ सकता था। I was thinking that if it was any of us, you know, we will come down from the cross saying that I will show you who am I now. अगर हम में से कोई होता तो हम क्रूस पर अगर होते तो हम अपने आप दिखाते कि मैं दिखाता हूँ कि मैं क्रूस से कैसे उतर के आता। But Jesus didn't do that. He was willing to suffer and he has taken all those mockery and hardship on himself. लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने पूरी जो वहाँ पे बेइज्जती थी, शर्मिंदगी थी, सबको अपने ऊपर सहने के लिए तैयार था। And why did he do that? और क्यों यीशु ने ऐसा किया? It was just for you and me. सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। Friends, when Jesus was on the cross, you were in his mind. मित्रों, जब यीशु क्रूस पर थे तो आप उनके ख्यालों में थे। In Isaiah chapter 53 verse 6 it says, यशाया के 53 के 6 में ऐसा लिखा है, the Father had laid on him the iniquity of us all. वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पिता ने उसके ऊपर सारी वो ताड़ना दे दी। Friends, where else can you find such love? कहाँ पर आपको ऐसा प्रेम मिल सकता है मित्रों? Think about your best friend or your most beloved family member. अपने खुद के बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र के बारे में या अपने परिवार के किसी के बारे में सोचें। Do you think that they will die for your sin? क्या आपको लगता है कि वो आपके पापों के लिए मर जाएंगे? No one else would be ready to die for you, right? कोई भी हमारे मरने के लिए तैयार नहीं होगा ना कभी भी। So how much we need to thank God? How can we not praise and thank Jesus for what he has done on the तो cross? कितना ज्यादा हमको उस यीशु को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने उस क्रूस की मृत्यु हमारे लिए सही। If you are grateful to Jesus, lift your hands and praise God. अगर आप यीशु के प्रति आभारी हैं तो अपने Hallelujah. हाथों को उठाकर यीशु को धन्यवाद दें। Praise the हालेलुया। Lord. This is what is happening in heaven, friends. यही सब कुछ स्वर्ग में हो रहा है मित्रों। You know, the angels are always 24/7 worshiping him, saying that holy, holy, holy is the Lord. स्वर्गदूत 24 घंटे और 7 दिन हमेशा पवित्र 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 उस यीशु को कह रहे And हैं। we read in Revelation that 24 elders falling down and they are laying their crowns at the feet of Jesus, saying, you are worthy to receive all the honor, glory and praise. और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कैसे 24 प्राचीन अपने मुकुट यीशु के सामने रखकर हमेशा कह रहे हैं, यीशु तो योग्य है। He is worthy to be praised, friends. वो आराधना के योग्य परमेश्वर है मित्रों। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So how can we obtain our crowns? तो हम कैसे वो मुकुट पा सकते हैं? Do you know that there are so many crowns and rewards waiting for us in heaven? आपको पता है क्या स्वर्ग में हमारे लिए एक मुकुट है, एक मुकुट रखा गया है जो तैयार है? Jesus says that he will bring rewards with him when he returns. यीशु कहते हैं वचन में कि यीशु आएंगे और अपने मुकुट को जो उसने तैयार किया है वो अपने साथ लेकर आएंगे। In Revelation 22, chapter 22 verse 12, we read like this. हम प्रकाशित वाक्य उसके 22 के 12 में ऐसे पढ़ते हैं, Look, I'm coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। You might have heard about the Queen of England, Queen Elizabeth II. आप लोगों ने सब ने इंग्लैंड की क्वीन के बारे में सुना होगा, रानी के बारे में, जो क्वीन एलिजाबेथ जो दूसरी थी। She is 95 years young and she is ruling from the year 1952. That is almost for 70 years she is ruling. और वो 95 उम्र की है और 52 ईयर्स से वो जो है शासन कर रही है, राज्य कर रही है 1952 से। Yeah.
Yeah, we know about the British royalty and how they hand over their dynasty. और हम जानते हैं कि कैसे वो एक ब्रिटिश जो राजपाट है उसके कैसे उस सब का देख रेख कर रही हैं। She became a she became a queen because her father, King George VI, was a king and she was the oldest daughter. और किंग जॉर्ज जो उनके पिताजी थे वो उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, इस कारण से वो इस राजपाट में थी। And kings and queens of England, they store all those crowns and royal robes in a place called the Tower of England for past 600 years. और टावर ऑफ इंग्लैंड करके एक जगह है जहाँ पर 600 साल से सारे वो मुकुट संभाल के रखे जाते हैं। So this Queen Elizabeth's crown, which is the most expensive crown you can find in the world today, is the most visited object in the world. इसीलिए जो क्वीन जो वो मुकुट पहनती है वो सबसे कीमती और महंगा मुकुट है जो दुनिया में उन्हीं के पास है। And do you want to know the value of this crown, the cost of this crown? आप मालूम करना चाहते हैं कि उस मुकुट का पैसा कितना है, मूल्य कितना है? It costs only $39 million. और वो 39 मिलियन डॉलर बस उतना ही है। And as one king or queen passes away, which is called the demise of the crown, this crown will be transferred to the next king or queen. और जब कोई एक राजा या रानी मर जाते हैं तो ये मुकुट जो है उनसे दूसरे को दे दिया जाता है। So during their coronation ceremony, they will get to wear this crown, and then they get only few important occasions to wear this crown during their ruling time. और उनके शासन के दौरान जब कभी-कभी ऐसा मौका होता है जब वो पहन सकते हैं, उसके अलावा सिर्फ उनके राज अभिषेक के समय में उनको वो मुकुट दिया जाता है। So to wear a royal crown, you have to be royalty or you have to be a part of the royal family. इसलिए आपको अगर वो एक राजकीय मुकुट पहनना है तो आपको उस राजकीय परिवार से होना पड़ेगा। You must be the descendant of a king or queen to inherit the throne. आपको एक वंश होना पड़ेगा उस राजकीय परिवार का, तब आप उस मुकुट को पा सकते हैं। Bible says in 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation and God's special possession. और यहाँ वचन में ऐसा लिखा है कि आप राजपदधारी हैं, आप याजकों का समाज हैं, पवित्र लोग हैं और निज प्रजा हैं परमेश्वर की। Wow, really? सच में ऐसा है क्या? God called us a royal priesthood, friends. परमेश्वर हमको राजकीय बताता है मित्रों। Do you see the royalty of the King of Kings in you? क्या आप देखते हैं कि परमेश्वर का वो राजकीय जो स्वभाव है आपके अंदर भी है? And do you believe that you are part of this most prestigious royal family which is far above the royalty of England or any other royalty you can find in this world? और क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप उस राजघराने से हैं, ऐसा राजघराना जो इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है? How come? ऐसे कैसे हो सकता है? How did you become the part of this royal family? कैसे आप बन गए इस राजकीय परिवार का हिस्सा? Let's come to the main text, chapter 2, Hebrews chapter 2, verse 10. Let's read this in Hindi, please. इब्रानियों 2:10 पढ़ते हैं। वहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वे बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। So through the suffering and death of Jesus, both, it says, both the one who makes us holy, that is God, and we who are made holy are of the same family. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दुख उठाने के द्वारा हम भी उसके साथ हम मिल गए हैं और साथ ही साथ उसके जिस परिवार का वो है उसी परिवार के हम भी सदस्य बन गए हैं। And Jesus calls us his brothers and sisters. That means he became our older brother, our bada bhaiya. इसलिए यीशु के हम भाई और बहन बन गए हैं, इसलिए वचन के अनुसार यीशु हमारा बड़ा भाई है। So what an amazing privilege we have, friends, to be adopted to this most prestigious royal family, and Jesus became our older brother who became our model to show the humility and obedience. इसलिए कितना ही ये अच्छा सौभाग्य हमारे लिए है कि हम एक राज्य के परिवार से हमारा एक संबंध है और साथ ही साथ हमारा यीशु जो है हमारा एक बड़ा भाई है जिसने सब कुछ इस संसार में सहा। And we know that positions bring responsibilities too. और हम ये भी जानते हैं कि जो भी हमारा कर्तव्य
जो भी हमको जिम्मेवारी पद मिलता है वो हमारे साथ जिम्मेवारियों को भी लेकर आता है। So after crowning, no king or queen will sit in their, AC room, enjoying all the delicious food and, enjoying all the comforts of इसलिए life. कोई भी राजा रानी बनने के बाद कोई भी आराम से एसी कमरे में बैठकर बड़े आराम से अपना जीवन नहीं बिताता है। What do? They take care of their kingdom and they will be working for the welfare of their people and to protect them, right? वो क्या करते हैं? वो अपने राजघराने की देखभाल करते हैं, अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। We too have responsibilities with our royal position. हमारी भी एक राजकीय पद हमको मिला है, इसके साथ हमारे पास भी जिम्मेदारियां हैं। 3 Sundays back, Pastor James announced that Sister Mercy will be the children's pastor along with Isha and with the whole team. 3 हफ्ते पहले पास्टर जेम्स ने ऐसा बोला था कि मर्सी जो है वो बच्चों की पास्टर होगी और ईशा के साथ मिलकर टीम में काम करेगी। And after that, Pastor prayed for her. And after that, have you seen how seriously Mercy has taken this responsibility and doing her things? क्या आपने देखा कि पास्टर ने फिर मर्सी के लिए प्रार्थना करी, उसके बाद से वो कितनी गंभीरता से इस सेवकाई को संभाला? Have you seen all those decorations she has done today and even last Sunday? क्या आपने देखा कि उसने कितने अच्छे से हर तैयारियों को किया था इस संडे और पिछले संडे भी? And not only for the children, have you noticed that last Sunday, how many of you have got that little cross? उन्होंने कैसे सब लोगों को वो पाम लीफ की क्रॉस भी दी थी? Yeah, we all got, not only for children, she made these little crosses for us adults also. और हम सबों ने उस क्रूस को पाया था। And this is called going extra mile. इसी को कहते हैं थोड़ा सा आगे दूसरी मील चले जाना। God wants the same from us also. परमेश्वर हमसे भी ऐसा ही चाहता है। Amen. Amen. Now I will quickly take you through the crowns waiting for us in heaven. मैं आपको उन सारे मुकुट के ओर लेके जाना चाहती हूँ जो स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहे हैं। So when we stand before the judgment seat of Christ, जब हम मसीह यीशु के उस न्याय के सिंहासन के पास होंगे, our faithful service to him will be evaluated and rewarded. और हमारा जो विश्वास योग्य सेवकाई हमने संसार में की है उसका न्याय होगा और उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। And he is going to assess every one of our actions, thoughts and motives. और वो हमारे हर कार्यों को, हमारी सोच को, हमारी जो लक्ष्य होते हैं उन सब का न्याय करेगा। That is a bit scary, isn't it? ये बड़ा ही डरावना सा लगता है, ऐसा है नहीं क्या? Let's look at the 5 crowns rewards waiting in heaven. आइए मिलकर देखते हैं ये 5 जो मुकुट हैं जो हमारे जीवन के लिए प्रतिफल लेकर आएंगे स्वर्ग में। The first one is the victor's crown. सबसे पहला जो मुकुट है वो है विजयी मुकुट। We are not going to read these Bible references because of lack of time. समय की कमी से हम इन बाइबल के पदों को नहीं पढ़ेंगे। Those who are writing notes, you can write down 1 Corinthians chapter 9 verses 25 to 27. सबसे पहले हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय का जो है 25 से लेके 27 पद तक। And it's written in the book of Revelation chapter 2 verse 10 also about this crown. और प्रकाशित वाक्य 2 के 10 में भी लिखा गया है इस मुकुट के बारे में। And as the name suggests, the victor's crown is for those who run their earthly runs victoriously. और ये जो विजयी मुकुट है ये उन लोगों के लिए है जो इस संसार में अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ दौड़ते हैं। Saying no to sin and running with determination and self-discipline is required to win this crown. ये उन लोगों के लिए होता है जो हर चीजों को मना कर और अपने जीवन को अनुशासित कर इस दौड़ को दौड़ते हैं। We need to narrow down our focus to those things, those who have highest eternal value. और वो जो चीजें जो अनंत काल के लिए जो मूल्यों को रखती है उनको अपने केंद्र बनाते हुए हमको आगे बढ़ना है। We know that life is full of good things. हम जानते हैं जीवन हर अच्छी चीजों से भरा हुआ है। But those good things can take our attention, our focus away from Jesus, from God and eternity. लेकिन वो सारी अच्छी चीजें जो हम देखते हैं वो हमको परमेश्वर से और अनंत काल से दूर ले जा सकती हैं। We need to have the ability to say no to so many things that are going to hinder our running and winning those crowns. हमको कई चीजों के लिए इनकार करना है जो हमको हमारी दौड़ में हमारे लिए एक रुकावट बनती हैं। There is nothing wrong in enjoying those good things. ये कोई गलत नहीं है कि हम उन अच्छी चीजों का आनंद ना उठाएं, But remember this. लेकिन इस चीज को याद रखें। A good thing becomes a bad thing if it keeps you away from the best thing. हर अच्छी चीजें बुरी चीज बन जाती है अगर वो हमको उत्तम चीज
के लिए नहीं पहुंचाती। I'll say that again. A good thing becomes a bad thing if it keeps you away from the best thing. एक अच्छी चीज बुरी चीज बन जाती है अगर वो हम उत्तम को हमसे दूर कर देती है, उत्तम चीज को। Say no to say yes to Jesus. हमको चीजों को मना कर कर यीशु को हाँ बोलना है। So my question to you, इसलिए मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, think about how you are spending your time, money and talents. इसलिए सोचिए कि कैसे आप अपने गुणों को, अपने पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। Do your habits reflect service to God क्या- or do they indicate other priorities? क्या आपका स्वभाव जो है परमेश्वर के प्रति सेवकाई को दिखाता है या आपकी दूसरी प्राथमिकताओं को दिखाता है? The second crown is a crown of rejoicing. दूसरा जो मुकुट है वो है आनंद का मुकुट। It is written in 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. पहला थिस्सलुनीयों उसका दूसरा अध्याय का हम 19वां पद में पढ़ सकते हैं। And this crown is rewarded to those who bring others to Christ. और ये जो मुकुट है ये उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरों लोगों को यीशु के पास लेकर आते It हैं। is also called soul winner's crown. ये ऐसे भी कहा जाता है कि प्राणों को जीतने वाला मुकुट। So if you lead other people to Christ, you will receive this crown. इसलिए अगर आप लोगों को यीशु के लिए जीतते हैं तो आप इस मुकुट को पाएंगे। So my question to you is this: इसलिए आप लोगों से मेरा प्रश्न ये है कि when was the last time you have shared about Jesus to someone? आपने ये कब हुआ था आखिरी बार जब आपने लोगों को यीशु के बारे में बताया था? And when was the last time someone accepted Jesus when you shared the gospel? और ये कब हुआ था जब आपने सुसमाचार किसी को सुनाया और उस व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु को दिया? Third crown, तीसरा मुकुट the crown of righteousness. धार्मिकता का मुकुट। And it is written in 2 Timothy chapter 4 verse 8. और इसके बारे में हम दूसरा तिमुथियुस उसका 4वां पद के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं। You know, this crown is for those who are waiting, those who are longing to see heaven, longing to see the face of Jesus. ये मुकुट उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग के लिए बहुत अभिलाषी हैं, जो यीशु का मुंह देखने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं। It is not for people those who are busy hoarding things for themselves and worried about the earthly matters and forgetting about the true home. ये उन लोगों के लिए नहीं है मुकुट जो इस संसार की चीजों में व्यस्त हैं और जो ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या है। And my question to you is, are you longing to see Jesus? और मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि क्या आप उस यीशु को देखने के लिए इच्छा रखते हैं? What aspect or aspects of heaven do you most look forward? ऐसी वो स्वर्ग की कौन सी चीज है जिसको देखने के लिए आप अभिलाषी हैं? You know, sometimes I jokingly tell my husband that when we go to heaven, if you want to see me, you have to come to that fruit garden. मैं कभी कभी अपने पति से मजाक करते हुए ऐसे कहती हूँ, अगर आपको मुझे देखना है स्वर्ग में तो आपको उसके लिए फूलों की फलों की बाग में, बगीचे में आना पड़ेगा। Do you know the reason? आपको पता है क्या कारण है इसका? I have cold allergy problem. So when we buy fruits in our home, you know, I cut fruits and my husband would be enjoying all those delicious fruit. I will be sitting there looking at him because I can't eat. I get sick. मेरे को एलर्जी की परेशानी है, इसलिए जब भी मैं फलों को काट रही होती हूँ तो मेरे पति जो है उसका बड़ा आनंद उठा रहे होते हैं, लेकिन मैं खा नहीं सकती हूँ उसको, इसलिए मेरे लिए समस्या है। So I tell him that, you know, when I go to heaven, I will not have any cold allergy, you know, I will not have any issues, any problems. So I will be eating all the fruits and the fruits are without any chemicals. इसलिए मैं अपने पति से ऐसा कहती हूँ कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगी तो मुझे वहाँ कोई एलर्जी नहीं होगी, इसलिए आप मुझे फलों के बाग में पाओगे जहाँ पर मैं सारे फल खा पाऊंगी। Now you might be thinking, are there going to be fruits in heaven? अब आप सोच रहे होंगे क्या स्वर्ग में फल भी होंगे? Yes, friends, there are going to be all kinds of fruits and flowers and all the precious jewels and gold, all those good things you can think about is there in heaven. हाँ मित्रों, स्वर्ग में वो सब चीजें होंगी जो इस संसार में मतलब फल होंगे, सोना चांदी सब कुछ, हीरे सब होंगे। Now are you getting excited क्या आप about heaven? उत्साहित हो रहे हैं स्वर्ग के लिए अब? Yeah. The fourth crown, चौथा मुकुट, the crown of life. जीवन का मुकुट। It is written in James chapter 1 verse 12 हम याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 12वें पद में पढ़ सकते हैं and Revelation chapter 2 verse 10. और प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे अध्याय के 10वें पद में पढ़ सकते And हैं। this crown is for those who remain faithful to Jesus when temptations, persecutions or even death come before them. और ये मुकुट उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे जब परीक्षाएं आएंगी, जब सताव आएगा और जब मृत्यु भी आएगी। And anyone who gives a price for their faith will receive this crown. और जो भी अपने जीवन के लिए एक मूल्य चुकाएगा उसको ये जीवन का मुकुट मिलेगा।
So when your unsaved family members or friends or all those evil people out there, if they are going to say or do something against you because of your faith in Christ, you need to remember the crown of life is waiting for me. इसलिए अगर आपके अपने लोग या बाहर के दुष्ट लोग अगर आपका विरोध करेंगे तो ये हमें जानना है कि ये मुकुट हमारे लिए रखा गया है। So my question to you is this: इसलिए मेरा प्रश्न आपसे ये है, how have you suffered for the sake of the gospel? आपने कैसे यीशु के उस सुसमाचार के लिए कष्ट सहा है? What are the sufferings or persecutions you face today? ऐसी कौन सा सताव है, ऐसा कौन सा क्लेश है जो आपने सहा है? The fifth crown is the crown of glory. पांचवा जो मुकुट है वो महिमा का मुकुट है। It is written in 1 Peter chapter 5 verse 4. और ये हम पाते हैं पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय का 4था पद। And this crown will be given to the faithful shepherds of God's people. और ये मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा जो विश्वास योग्य परमेश्वर के वो चरवाहा हैं। That includes pastors, elders, deacons, worship team members, children's ministry team, and all those people, those who are in leadership. और ये मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा जो अगुवे होते हैं, जैसे आराधक लोग होते हैं, प्रचारक लोग होते हैं, पासवान लोग होते हैं, ऐसे उन सब लोगों को दिया जाएगा। It is basically for those people, those who lead others in their faith life. ये ऐसे उन लोगों को दिया जाएगा जो लोगों को और भी अपने विश्वास की यात्रा में आगे लेकर चलते हैं। So my question today is, इसलिए आपसे आज मेरा प्रश्न ये है, are you involved in any ministry responsibility? क्या आप किसी सेवा की जिम्मेदारी में अपने आप को सम्मिलित किए हुए हैं? If not, ask the Lord where you can serve and shepherd God's people. अगर ऐसा नहीं है तो आज आप पूछिए अपने आप से कि कहाँ मैं लोगों के बीच में एक चरवाहा का काम कर सकता हूँ। And finally, we have to press towards the goal. और आखिरी में हमको उस लक्ष्य को पाने की ओर दौड़ना है। Yeah, we need to look forward. We must long to get into heaven and to receive these crowns and rewards. और हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक उत्तेजना होनी चाहिए कि हम किसी तरह से इसका प्रतिफल वो जो स्वर्ग में माले रखा है उसे पा सकें। But no crown can be compared to the splendor of us seeing our Lord Jesus face to face. लेकिन ऐसा कोई मुकुट नहीं है जो हमको उस महिमा से, जो महिमा में परमेश्वर को देखने के लिए वो जो सौभाग्य हमें मिलेगा उससे बढ़कर। For me, living with Jesus eternally is the greatest reward I can get. मेरे जीवन के लिए यीशु के साथ अनंत काल तक जीवन बिताना मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल है। Looking back to the work of Christ on the cross, that is very important. ये बहुत जरूरी है कि हम मुड़कर पीछे जो क्रूस पर यीशु ने किया था उसको स्मरण करें। But we also need to look forward to fellowship with Christ in heaven eternally. लेकिन हमको आगे की ओर भी देखना है कि हम कैसे यीशु के साथ संगति करेंगे हमेशा अनंत काल के लिए। In Philippians chapter 3 verses 13 and 14, Apostle Paul says like this. फिलिपियों 3 के 13 और 14 में हम ऐसा पढ़ते हैं, Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize. यहाँ पर ऐसा लिखा है फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 13वें पद में, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाऊं। Friends, we all need to stand before the judgment seat of Christ one day to give an account of our lives. मित्रों, हम सबों को एक दिन उस न्याय के सिंहासन के पास खड़ा होना है जहां पर हमको अपना लेखा देना है। So when you are going to stand there, there won't be anyone else standing with you to support your case or to argue your case. इसलिए जब आप उस सिंहासन के पास खड़े होंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, आप अकेले खड़े होंगे ताकि आप अपने मुद्दे को उस मुद्दे से लड़ने के लिए आप अकेले होंगे। You know, your church members, your pastors, your family members, I pray that all will be there, but nobody else will be arguing for you. Nobody else will be standing with you when God is going to open that book and ask you the account of your life. आपके लोग, आपके पासवान, आपके कलीसिया के लोग सब वहां पे होंगे, लेकिन आपके बोलने के लिए कोई भी आपके साथ मदद नहीं कर पाएगा। Remember that, one by one, alone you are going to stand there. इस चीज को याद रखिए, एक के बाद एक आप अकेले वहां पर आप खड़े होंगे। And He will give the rewards and crowns according to what we have done here on earth. और वो सबों को उनके कामों के अनुसार उनको मुकुट देगा, उनको प्रतिफल देगा।
Friends, heaven is not just a destination, heaven should be our motivation. मित्रों, हमारा जो स्वर्ग है वो हमारा एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी प्रेरणा होनी चाहिए। As I conclude this message, I want all of you to close your eyes. इससे पहले मैं अपने वचन को खत्म करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। Would you stand with me? क्या आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं? If you are listening to me today and if you haven't become a part of this family, this prestigious royal family, I invite you to invite Jesus into your hearts today. अगर आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं और आप आज तक इस राजकीय परिवार का हिस्सा नहीं है, तो आपको हम न्योता देते हैं कि आप इस यीशु के पास आएं। Friends, Jesus Christ came into this world. He suffered and died on the cross just for you and me. मित्रों, यीशु इस संसार में आया, उसने पीड़ा उठाई सिर्फ आपके और मेरे लिए। If you have backslidden from your faith due to the worries of this world, I invite you to come back to Jesus today. अगर इस संसार के क्लेशों के कारण, तनाव के कारण आप पीछे हट गए हैं यीशु से, मैं आपको न्योता देती हूँ कि आप लोग यीशु के पास वापस आ जाएं। He is the only one who can help you. सिर्फ वही यीशु है जो आपकी मदद कर सकता है। And if you are following Jesus for what you can get from him, you are in the wrong path. अगर आप यीशु का पीछा सिर्फ इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आप एक गलत रास्ते में हैं। Love God for who he is. यीशु से प्रेम करें कि वो कौन है। He is the savior of our lives. He has saved us from eternal punishment. यीशु हमारा उद्धार करता है, उसने हमको अनंत काल के दंड से छुड़ा लिया। And make him the Lord of your life. और उसको अपने जीवन का प्रभु बना लें। Lord means the one who rules. प्रभु का मतलब वो होता है जो प्रभुता करता है। Submit to God's authority today and pray for his will to be done in your life. यीशु के अधिकारों के नीचे अपने आप को समर्पित कर दें और अनुमति दें कि यीशु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। In Revelation chapter 3 verse 11 we read like this. हम प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11वें पद में ऐसा पढ़ते हैं। I am coming soon. मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। Hold on to what you have so that no one will take your crown. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि तेरा मुकुट कोई छीन न ले। Jesus is coming back soon, friends. यीशु बहुत जल्दी आने वाला है मित्रों। And we see all those signs that are written in the Bible is happening in the world today. और बाइबल में जो जो चीजें लिखी है वो चिन्ह के रूप में आज हम देख रहे हैं पूरा हो रहा है। We know how we have gone through this pandemic during the past 2 years. हम जानते हैं पिछले इस 2 सालों में हम कैसे इस महामारी से होकर गुजरे हैं। And there is war happening between Russia and Ukraine. और रशिया और यूक्रेन के बीच में कैसे युद्ध छिड़ा हुआ है। And you hear about floods and droughts and earthquakes and all those things, all those signs of end of the world is happening all around us. और आप देख रहे हैं कि कैसे सूखापन और कैसे बाढ़ आ रही है कई जगहों में। And there is not much time for us. और हमारे पास ज्यादा समय अब नहीं रहा है। Let us prepare ourselves for the coming of Jesus Christ. आइए हम सब लोग मिलकर अपने आप को तैयार करें उस यीशु के आने के लिए। And let us share this good news, this gospel to your friends, your family members, those who are unsaved, and bring them also to this kingdom. और आइए मिलकर इस सुसमाचार को, इस यीशु को अपने परिवार में, अपने लोगों पे जिनको हम जानते हैं उन तक भी पहुंचा दें। Hallelujah. Let's close our eyes and pray. Thank आइए you, मिलकर अपनी Jesus. आंखों को बंद करें और प्रार्थना Hallelujah. करें। Thank you, धन्यवाद Father. Thank you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father, for sending your son Jesus into this world धन्यवाद प्रभु यीशु अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए, to die for us on that cross of Calvary. ताकि उस क्रूस, उस कैलवरी पे वो हमारे लिए मारा जाए। Thank you, Jesus, that you have suffered for us on that cross. धन्यवाद यीशु, उस क्रूस पर आपने हमारे लिए पीड़ा सही। You were completely obedient to the purpose and plan of the Father God. आप पूरी रीति से अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी थे। And help us, Lord, to remember that cross and help us, Lord, to look forward to the rewards and crowns that you have kept for us in heaven. और परमेश्वर आप हम सबों की सहायता करें कि हमारी आंखें हमेशा उस क्रूस पर लगी रहें और उस प्रतिफल को पाने के लिए जो आपने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। Jesus, we know that you are coming soon. यीशु हम जानते हैं कि आप बहुत जल्दी आने वाले हैं। Prepare our hearts and minds, Lord. Help us to prepare our own lives to receive you, Lord, when you come. आमीन। हमारे जीवनों को, हमारे मन Thank को, you, हमारी Lord बुद्धि को Jesus. तैयार करें यीशु, ताकि हम तुझे स्वीकार कर सके जब आप इस संसार में वापस आए।